मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि नेता लोग क्यों नहीं ऐसे एनवायरनमेंट के इश्यूज को समझ पाते हैं। क्यों उन्हें हमेशा कैपिटलिस्ट या क्रोनीज का ही फायदा कराना होता है। क्या एनवायरनमेंट उनके लिए ज़रूरी नहीं है? अगर एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं है तो क्यों आपने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बना रखी है? मत बनाइए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, हटा दीजिए जावड़ेकर को, कोई और डिपार्टमेंट संभाल लीजिए आप। So I don't know why the mainstream media hasn't covered this till now. Maybe because this topic won't fetch them TRP, or this goes against the journalism ethics. But as we speak right now, most of the Goans, basically whole of Goa, is protesting. They're coming onto the roads, they're taking out candlelight marches, they're coming onto the railway tracks to save a particular region in Goa. So the question arises here is, why are the Goans protesting? So the Goans are basically protesting against the Goa government's decision to shed out 70,000 trees in Molam National Park. जी हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे एक बार फिर से कटने वाला है। पेड़ कटेंगे ही कटेंगे, अगर पेड़ कटेंगे तो हमारा भी कटेगा। So basically during the lockdown period, the Goa government over a video conferencing approved 3 major projects. Mind you, ये एक पूरा environment को लेकर के issue है, but the Goa government approved 3 major projects over a video conferencing, and these 3 ये जो 3 projects हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये है 4 laning of existing national highway NH4A, laying of a 400 kilowatt transmission line, and doubling of an existing railway line. एंड ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये मोलम नेशनल पार्क के बीचों बीच से जाएंगे, ये भी नहीं कि साइड से जाएंगे, मोलम नेशनल पार्क के बीचों बीच से जाएंगे। एंड टू put this plan into action, the government has already decided that they will have to clear 250 hectares of forest, which means 70,000 trees are gonna be chopped off. मतलब एक क्लास 6-7 में पढ़ने वाले बच्चों को भी क्लाइमेट चेंज के बारे में पता होगा, बट द गोवा गवर्नमेंट डजंट सीम टू केयर. They have already approved the project and they are going ahead with it. They don't know the repercussions of cutting down 70,000 trees and or clearing 250 hectares of land. मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि there will be a displacement in animal habitat, flora and fauna को नुकसान होगा, climate change तो होगा ही होगा, the temperature will rise. So basically in a nutshell, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो हम गोवा के सपने देखते थे, those beaches, clean water, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वो हम सब भूल जाएं, क्योंकि जब ये फॉरेस्ट को उखाड़ेंगे तो जितना भी रेसिड्यू होगा वो तो स्ट्रीम्स में ही सेटल हो जाएगा, एंड वो स्ट्रीम से सी में आएगा और सी फिर गंदा हो जाएगा। तो बट द गोवा अथॉरिटीज डजंट सीम टू गेट, दे आर लाइक वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द प्रोजेक्ट एंड वी आर गोइंग अहेड विद इट, बट द थिंग्स गेट वर्स ओवर हियर. According to a report in the Indian Express tells us that the Goa board has all that the Goa government is going ahead with these 3 projects, and they set up a panel for checking on to these three projects. But the 6 members of that same panel have come out and said that they did not know the real agenda about it. And they were unaware of the clearance and have red flagged their own environmental issues. तो यहाँ पे हिपोक्रेसी अपनी बेस्ट पे है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी कहते हैं दैट बाय 2020 वी विल हैव अराउंड 220 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि उन्हीं के स्टेट में, जहाँ पे उन्हीं की पार्टी का एक सीएम है, उन्होंने अप्रूव भी कर देता है, और उसी पैनल के 6 लोग जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सबके सब, वो अपने रेड फ्लैग्स दिखाते हैं इस इशू को लेकर के। तो इन्हें यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की इन्हें वैल्यू नहीं पता चली, क्योंकि यहाँ पे जो कोल है वो बेसिकली इन्हीं के रिच मैन, जिंदल, अडानी, इन सबको जाना है। तो यहाँ पे हिपोक्रेसी अपनी बेस्ट में है। Now all these 3 projects are a part of the Western Ghats protected area. Now if these 3 projects go through, if the environmental ministry does not put a pause on them, so they will be cutting through tiger habitats, butterfly species, flora and fauna. Naturally there are around, if I say, 128 species of plants, 722 species of flowering plants, and butterfly species, 70 mammal species. They'll be cutting through all of that. That means displacing a very important wildlife habitat in that area. Now Western Ghats are a part of UNESCO World Heritage Site, and इस World Heritage Site की तबाही हो रही है क्योंकि सेंटर ने एक MOU साइन करा है पावर हाउसेस के साथ, नेमली अडानी, जिंदल स्टील पावर प्लांट एंड वेदांता, टू प्रोवाइड देम विथ कोल. Now these powerhouses in total consume total of 14 crore tons of coal, but the Mormuga port of Goa, it can't handle more than 5 crore tons of coal.
वो 5 करोड़ टन से ज़्यादा कोल हैंडल नहीं कर सकता, तो बाकी का कोल पहुँचाने के लिए गोवा कर्नाटका हाईवे जो मैंने आपको बताया NH4 है, उसको 4 लेन करना है, और एंड द डबलिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन। तो ये खाली कोल पहुंचाने के लिए अपने फेवरेट्स को, क्योंकि इन्होंने इनके इलेक्शन कैंपेन में पैसे लगाए थे अडानी साहब ने, तो इनको फेवर रिटर्न करने के लिए ये सेंचुरीज ओल्ड फॉरेस्ट की तबाही करने वाले हैं। तो आप खुद समझिए इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। क्लाइमेट चेंज में तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में एनिमल हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय होगा। अब आप मेरे को खुद बताइए, अगर कल के दिन आपके घर के बगल में कोई कोल प्लांट आके लगा दे, आपको कैसा लगेगा? या फिर आपके घर के बगल से रात को दिन में 24 घंटे 24/7 आपके घर से कोल के ट्रक्स जा रहे हैं, हमको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो गोवान्स भी इसी चीज़ के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सेव द फॉरेस्ट। वो नहीं चाहते कि ये पूरा एरिया क्रोनीज के पास चले जाए, कैपिटलिस्ट्स के पास चले जाए। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इन प्रोजेक्ट्स के साथ? अगर ये प्रोजेक्ट्स आगे जाते हैं तो पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटा गया तो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन अगर हुआ तो एनिमल हैबिटेट डिस्प्लेस होगा, एनिमल हैबिटेट डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर अगर एनिमल अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस चलेगा, और अगर इकोलॉजिकल बैलेंस हुआ तो देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, बेसिकली क्लाइमेट चेंज। सो द थिंग इज़ कि हमारे लगने वाले हैं अच्छे से। सो ये जो प्रोजेक्ट है, दिस ऑल्सो डिवाइड्स द मोलम नेशनल पार्क एंड द Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary into 4 parts, which will disconnect the rich wildlife. So till now, around 149 scientists, environmentalists, academicians, and conservationists have written to Javadkar citing the concerns. तो जो लोग गोवा के हैं और जो लोग गोवा के ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वहाँ के सीएम ने आउटसाइडर्स बोल दिया है। थैंक गॉड आउटसाइडर्स ही बोला है, वरना 2014 के बाद से तो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ अग्री नहीं करते तो आपको एंटी नेशनल पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? थैंक गॉड उन्हें जस्ट आउटसाइडर्स तक ही लिमिट रखा, एंटी नेशनल वगैरह कुछ नहीं बोला गया। There is a report which says that in the last 120 years the temperature of Goa has risen just by 1 degree, and that very same report also says that if these projects go through, the temperature of Goa will rise by 2 degrees Celsius in just 10 years। तो आप देख सकते हैं ड्रास्टिक इफेक्ट जो इसका पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पे। ना द फॉरेस्ट विच इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इन गोवा, उसके लिए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए द गोवा गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड द कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर लैंड, ताकि वो वहाँ पे पेड़ उगा सके, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। लॉजिक की बात तो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं। अगर बीजेपी वालों पे लॉजिक होता तो ये नहीं बोलते कि गोबर लपेट लीजिए, आपके ऊपर से आपको न्यूक्लियर रेडिएशन का फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर थाली बजा लीजिए, थाली बजाने से कोरोना गायब हो जाता है। लॉजिक की तो यहाँ पे बात आती ही नहीं है कहीं से। एंड और तो और जिस कॉर्पोरेशन के लिए ये कर रहे हैं, जो 3 पावर हाउसेस के लिए ये कर रहे हैं, दे हैव इवन रिफ्यूज टू पे द ग्रीन सेस टू द गोवा गवर्नमेंट व्हिच इज जस्ट ऑफ अराउंड 208 करोड़, arguing कि we will take all the necessary precautions while handling and transporting coal। तो ये ग्रीन सेस भी नहीं दे रहे हैं, जो कि एक बहुत मिनिमल अमाउंट का, और जिसके लिए ये सब हो रहा है, इनके लिए ये सब हो रहा है और ये ग्रीन सेस देने के लिए तैयार नहीं है। द गवर्नमेंट इन इट्स डिफेंस इज सेइंग दैट ये 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है। ये तीनों एक ही प्रोजेक्ट्स हैं और सेम विसिनिटी में ही दिए गए हैं। मोर ओवर 2011 की माधव गडगल कमेटी ने ये तक बोला है कि इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट, अंजाम बहुत बुरे होंगे। And the very same committee has reported that this particular area is a ecologically sensitive area, and ये इसी ecological sensitive area को काटने जा रहे हैं, उधेड़ने जा रहे हैं 3 पावर हाउसेस के लिए, जस्ट टू सप्लाई देम विद कोल। दैट्स इट, और कोई काम नहीं है इसमें। गोवा के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं है। मतलब जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की तो नहीं देखी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनकी देखी, तो मैं समझ गया। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि नेता लोग क्यों नहीं ऐसे एनवायरनमेंट के इश्यूज को समझ पाते हैं। क्यों उन्हें हमेशा कैपिटलिस्ट या क्रोनीज का ही फायदा कराना होता है? क्या एनवायरनमेंट उनके लिए ज़रूरी नहीं है? अगर एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं है तो क्यों आपने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बना रखी है? मत बनाइए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, हटा दिए जावेडकर को, कहीं कोई और डिपार्टमेंट संभाल लीजिए आप, जब हमें केयर ही नहीं है एनवायरनमेंट की। सो बेसिकली अगर इफ़ पीपल लाइक यू एंड मी वी डोंट स्टैंड अप फॉर द गोवंस, वी मे नेवर पॉसिबली एंजॉय गोवा अगेन। मैं तो गया भी नहीं हूँ गोवा, तो अगर ये प्रोजेक्ट हो जाते पास तो जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, एंड
बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ क्लिक करिए, क्योंकि ये चैनल आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड।